सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो पंजाब टूडे ते एक बार फिर लैके हाजिर हाँ इनसाइट्स विद विशाल सूद। इस प्रोग्राम 'च असीं गल करते हैं देश दुनिया के इंपोर्टेंट मुद्दों की, उन्हां मसलियां की जो साडी जिंदगी नाल जुड़े ने ते जो साडी जिंदगी नूं प्रभावित करते हैं। इनसाइट्स के लिए साडे नाल मौजूद होंदे ने विशाल सूद जी। वेलकम सर। थैंक यू अमन। सर, पंजाब दे विच नवे मिनिस्टर चुने गए हैं ते उन्हां दे पोर्टफोलियो दिते गए अज। देखो, आपां कल भी गल कीती सी कि बेसिकली पोर्टफोलियो एलोकेशन बहुत ज़रूरी है ताकि फोकस्ड अटेंशन हर डिपार्टमेंट ਨੂੰ ਜਾ ਪਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਤ ਹਾਇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੂਥ ਲੀਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਬਿਕੋਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਲਥ ਤੋਂ ਕੀ ਏਰੀਆ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਤ ਹਾਇਰ ਦੀ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਨਥਿੰਗ ਕੁਡ ਬੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਸਮਾਲ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਕਸ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੀਤ ਹਾਇਰ ਦਾ ਵੀ ਜੀ। ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਬੇਸਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫੋਕਸ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਥ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੜੇ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੀ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟ ਥਾਟਸ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਜੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਰੀਐਲੋਕੇਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਲਥ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀ ਉਤਰੇਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸਲੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫੋਕਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਸਲੋ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ, ਇੰਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋਰ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਲੋਕੇਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਾਫੀ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLAs ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਟੈਲੈਂਟਡ ਲੋਕੀ ਨੇ, ਰਾਈਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਰਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਦਿਓਗੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਲੈਟਸ ਸੀ ਹਾਊ ਇਟ ਗੋਸ। ਬਟ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੈਂਡਵਿਡਥ, ਜੋ ਮੈਨੇਜਰੀਅਲ ਜਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਬਈ ਆਪਾਂ 17 ਮਿਨਿਸਟਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ DGP ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇਤੀ। 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਐਕਟਿੰਗ DGP ਨਵੇਂ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਟੂ ਦੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਜੋ ਬੜਾ ਹੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ, IPS ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਰਦਰ ਦੈਨ IAS ਆਫੀਸਰ ਇਹ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰਸਟ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੇਥ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਿਲੀਫ ਇਨ ਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਦੈਟ ਪਰਸਨ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਕਟਿੰਗ DGP, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਤੇ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਅਗੇਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਸੀ, they have to look at ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਬਿਲ ਆਫੀਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਟਲੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਜੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਬੈਚਮੇਟ ਆਫ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ। ਜਿਸ ਸਾਲ 'ਚ ਉਹ 1992 'ਚ IPS ਆਫੀਸਰ ਬਣੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ IRAS ਆਫੀਸਰ ਸਨ ਜੀ। ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਾਬਿਲ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਕਾਬਿਲ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਓਵਰ ਵਰਕ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਲੈਟਸ ਵੇਟ ਐਂਡ ਵਾਚ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਇਹ ਰੋਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਬੰਦਾ, ਬੈਸਟ ਰੋਲ ਤੇ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚੇਂਜਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇੱਕ, ਜੇ ਸੰਗਰੂਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਚੈਲੰਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਸਲਿਪਰੀ ਰੋਡ ਤੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ 80s ਤੇ 90s 'ਚ ਝੇਲਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਜੇ ਡੇਂਜਰਸ ਪਾਥ ਤੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆ ਤੇ ਲੋਟ ਆਫ ਫੋਰਨ ਪਾਵਰਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਨਸਟੇਬਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਪ ਆਫੀਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤੀ ਆਫੀਸਰ
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਰੂਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੋ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਠੀਕ ਕਰੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ? ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਰੂਲਸ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਚੱਲਣਾ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ। ਜੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ? ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੇਅਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਵੀਕ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ, ਰਾਈਟ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਮੇਨਟੇਨਡ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਸੈਟ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੈਟਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਫੇਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆਊਟਸਾਈਡ ਪੰਜਾਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮਸ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵਨੈਸ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਤੇ ਇਨਫੈਕਟ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੀ ਹੋਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਹਾਰਮਨੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮਿਲ ਗਏ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸੀਐਮ ਕੋਲ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੰਮ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਸ ਦਾ। ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਈਟ? ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਲੋਕੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਬੰਦਾ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਹੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਮਿਲੇ। ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਆਪਟੀਮਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ। ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਡਿਮਾਂਡ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ 10 ਡਾਕਟਰ ਬਿਠਾਈ ਜਾਓ ਜਾਂ 10 ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ ਬਿਠਾਈ ਜਾਓ, ਤੇ ਆਪਟੀਮਮ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਗਲੈਡ ਕਿ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ। ਅਗੇਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਗੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਹੈਲਥ। ਜੀ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣਗੇ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਲੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਂਚ ਕਰਨੇ ਸੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਸ, ਹੋਪਫੁਲੀ ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮਲੀ ਲਾਂਚ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਾਸ ਅਰੈਸਟਡ ਫॉर ਕਰਪਸ਼ਨ ਚਾਰजेस, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਡਿਲੇ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਨਾਓ ਆਲ ਦੋਸ ਥਿੰਗਸ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਗੋਇੰਗ ਬੈਕ ਔਨ ट्रैक, ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇटेड ਜਿਹੜਾ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वर्ल्ड क्लास बनेगा। जी मीडिया पे भी काफ़ी चुनौतियां आ रही हैं सामने। सुधीर चौधरी ने रिज़ाइन किया और डीएनए प्रोग्राम राजीव रंजन जी करने लगे और राजीव रंजन जी को भी, उन पे भी आरोप लगे, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। देखो अब इसमें दो चीज़ें हैं। राजीव रंजन जी ने गलत न्यूज़ चलाई जी, ये बात हम सब मानते हैं जी, पर फिर उन्होंने उसके लिए माफ़ी मांगी और न्यूज़ चैनल ने भी माफ़ी मांगी जी। आज उनके ऊपर अगर वो माफ़ी मांग चुके हैं तो इसका मतलब है कि ह्यूमन एरर कर नहीं सकते। जब उन्होंने उसके बाद बोल ही दिया कि हमसे गलती हुई है और ह्यूमन एरर के कारण हुई है, अब आप उनकी इंटेंशंस को क्वेश्चन करके पुलिस एक्शन चलाना, और स्पेशली जो कांग्रेस स्टेट की पुलिस है वो इससे विंडिक्टिव नेचर दिखाती है। एक तरफ तो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं जिसने मेरा ऑफिस तोड़ा वो बच्चे उनको माफ कर दो जी, अब दूसरी तरफ एक बंदा जो अपनी गलती मान चुका है, उन लोगों ने तो गलती भी नहीं मानी और राहुल गांधी जी अपना बहुत बड़ा दिल दिखा रहे हैं वहां पे, और उन्होंने तोड़फोड़ की थी। यहाँ पे एक ह्यूमन एरर था और उसके बाद उससे रिग्रेटफुली उसको वापस लिया गया। चैनल ने भी और न्यूज एंकर ने भी माफी मांगी जी, तो उसके बाद पुलिस एक्शन मेरे को लगता है कि काइंड ऑफ अनफेयर है। अदरवाइज तो जर्नलिस्ट कुछ भी बोलने से पहले, हम लोग प्रेस में हैं राइट, हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम रिसर्च करके पूरी ईमानदारी के साथ और जो फैक्चुअल चीजें वो लेके आए, पर अगर एक बंदे से गलती हुई है, आज हम उनके इरादों को क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई उन्होंने जानबूझ के किया, गलत के किया, पर उसके बेसिस पे उनको हम गलत नहीं मान सकते जी। और जब एक बंदे ने अपनी गलती मान ली है, बट अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि आज जो मीडिया के लोग हैं, जो यूपी पुलिस और छत्तीसगढ़ पुलिस के बीच में हुआ जी,
वो दिखाती है कि मीडिया कैसे पार्टीज के बीच में पड़ चुका है, खास तौर पे हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया जी, कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यूपी पुलिस ने भी वही एक लाइट सी एफआईआर करके उनको अरेस्ट कर लिया, पुलिस वाले आपस में लड़ रहे हैं। ये बहुत अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि एक मीडिया के लोगों के ऊपर इतना उनके मतलब कि इन्वेस्टमेंट्स हो रखी हैं कि एक पुलिस को उसको प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है और एक पुलिस को उसको अरेस्ट करना ही पड़ेगा जी। तो इसके दो एस्पेक्ट है। मेरे को नहीं लगता कि यूपी पुलिस वाज राइट उनको अरेस्ट करने में, ताकि वहां पे वो उनको ना जाना पड़े जी। और उनके खिलाफ जो वारंट इशू हुआ, बेसिकली जो पुलिस एक्शन वहां पे भी जो इनिशिएट हुआ, वो भी मेरे को लगता है कि जब पब्लिकली माफी मांगी जा चुकी है तो उसको भी रोका जा सकता था जी। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है ये हमारी डेमोक्रेसी को, और हमारे डेमोक्रेसी के जो भी पुलिस एग्जेक्टिव में आती है, हम मीडिया फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी हैं जी। ये हम सबको किसी अच्छी, और इवन पॉलिटिक्स को तो ऑफ कोर्स वो तो इन्वॉल्व है ही है, उनको किसी अच्छी लाइट में नहीं डालते। ये चीज मेरे को लगता है कि हमारे देश की इमेज के लिए अच्छी नहीं है जो भी ये चीजें हो रही हैं। सर, उद्धव ठाकरे रीगेन करना चाहते हैं अपनी सरकार को और कोर्ट का सहारा ले रहे हैं। देखो, उनका हक बनता है वो रीगेन करे, और अगर वो पहले से ही अपनी टीमों को बेटर तरीके से मैनेज करते, उनकी बात सुनते, एमएलए से 2-2.5 साल में एक आधी बार मिल लेते, और जिस आइडियोलॉजी के लिए उन्होंने वोटें सीख की हैं, जो शिवसेना की आइडियोलॉजी है, अगर उस पे चलते तो दे वुड हैव बीन बेटर ऑफ। आज आप चाहे इसको बीजेपी की पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज मान लो, चाहे आप उद्धव ठाकरे जी की जो एक नासमझी मान लो, या एक एरोगेंस मान लो, या चाहे आप शरद पवार जी की अपॉर्चुनिज्म मान लो जी, आप इसको जैसे मर्जी मान लो, आज उद्धव ठाकरे जी एक बहुत ही वीक लीडर के रूप में नजर आ रहे हैं। शिवसेना अब थ्रू स्पीकर अब मेन शिवसेना पार्टी जो शिंदे जी के ग्रुप में है उसको बोले और उन्हीं की विप माननी पड़ेगी जी। आज उनके लोग, जो लोग उनके लिए लॉयल भी थे, अगर वो भी अगेंस्ट पार्टी नॉर्म चलते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। इनफैक्ट शिंदे जी ने कुछ एमएलएस की एप्लीकेशन डिस्क्वालिफिकेशन के लिए डाल भी दी है। अब उस पर भी डिस्कशन चलेंगी। हालांकि जो उद्धव ठाकरे जी के बेटे हैं आदित्य ठाकरे, उनका आउट ऑफ रिस्पेक्ट डिस्क्वालिफिकेशन के लिए अभी नाम नहीं डाला है। उन्होंने भी हालांकि पार्टी विप के अगेंस्ट वोट किया जी, बट अब फ्लोर पे उन्होंने मेजॉरिटी अपनी साबित कर दी है। इन ऑल प्रोबेबिलिटी अब यही शिवसेना बीजेपी गवर्नमेंट ही चलेगी, शिंदे ही इसके सीएम होंगे जी। अब प्रैक्टिकली इसको पीछे से फडणवीस जी चलाते हैं, बीजेपी कंट्रोल करती है, या शिवसेना के लोग इस गवर्नमेंट को लीड करते हैं, ये टाइम ही बताएगा। पर मैं अगर इसको देखूं तो एक काइंड ऑफ 2-2.5 सालों में जो एक जो मैंडेट मिला था, एंड में गवर्नमेंट वही है ये जी। बीजेपी और शिवसेना ने मिलके ही इलेक्शन लड़े थे, अलग अलग जगह पे लड़े थे, बिल्कुल है ना, सीटें आपस में डिवाइड की थी, बिल्कुल। उसमें बीजेपी केम आउट एज अ बिगर ब्रदर जी, और उसके कारण उद्धव ठाकरे जी ने आउट ऑफ अपॉर्चुनिज्म और एक मौका देख के कांग्रेस के साथ और एनसीपी के साथ टाई अप किया जी। मेरे को लगता है कि उन्होंने अपना बहुत एक पॉलिटिकल फ्यूचर को खतरे में डाल लिया इस अपॉर्चुनिटीज टाई अप के साथ जी। और उसके बाद जो उनका एटीट्यूड रहा है टुवर्ड्स गवर्नेंस, एक जो लैक ऑफ ह्यूमिलिटी उन्होंने दिखाई, जो अपने एमएलएस की कोई बात नहीं सुनी और इसको एक फैमिली रन ऑर्गेनाइजेशन की तरह जो शिवसेना को चलाया, ये उन चीजों का नतीजा है कि टुडे ही इज फेसिंग दोस प्रॉब्लम्स। बिल्कुल, एक सीईओ की तरह मुझे लगता है कि सरकार चलानी चाहिए मुख्यमंत्री को, सीईओ की तरह, पर एक एंड में पॉलिटिक्स है और आप फैमिली इसको इस तरह से ना चलाए कि ये आपका पर्सनल असेट है जी, आप सबको साथ लेके चले। सीईओ वाला पार्ट आता है रिजल्ट्स में जी, पर आप एंड में पॉलिटिकल नेता हो, आपको लोगों का व्यू भी साथ में लेके चलना है, तो एक राइट बैलेंस बनाना किसी भी सीएम के लिए इंपॉर्टेंट है। सर, करंट अकाउंट डेफिसिट में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। देखो, ये एक बड़ा सीरियस इशू है, जो ग्लोबल चीजें चल रही हैं, तो काफी एलिमेंट्स हैं जो हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट बेसिकली होता क्या, हम अपनी पब्लिक को बता दें कि हम अपना कितना इंपोर्ट कर रहे हैं और कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बीच का डिफरेंस जी। अब जो हमारा रुपी है वो डॉलर के मुकाबले में गिर रहा है, ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, फिर हम गोल्ड बहुत इंपोर्ट करते हैं, तो हमारी एनर्जी नीड्स काफी हद तक फॉरेन डिपेंडेंट है जी। तो उसके और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में इस साल रिकॉर्ड $25 बिलियन का डिफरेंस है, और पूरे क्वार्टर का $70 बिलियन का डिफरेंस आ गया जी। तो ये मेरे को लगता है कि फाइनेंशियल प्रूडेंस के सर्टेन टारगेट्स भी होते हैं, तो अल्टीमेटली ये
इसका रिस्क और भी चीज़ों पे आता है, हमारी ग्रोथ पे भी रिस्क आता है जी। तो गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स तो लिए थे, जैसे उन्होंने गोल्ड के इंपोर्ट पे टैक्स लगाए हैं और जो ऑयल एक्सपोर्ट होता है प्रोसेसिंग के बाद उस पर कुछ टैक्स लगाए हैं। हालांकि इससे कुछ हमारा रेवेन्यू तो बढ़ेगा पर इससे इन्फ्लेशन पे तो कोई खास इम्पैक्ट नहीं आएगा जी। तो मेरे को लगता है कि जब तक हम अपनी एनर्जी डिपेंडेंसी, जो हमेशा से हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, जब तक हम रिन्यूएबल सोर्सेज पे नहीं आएंगे हम एक बहुत बड़े रिस्क पे बैठे रहेंगे। ये तो फॉर्चुनेट हो गया कि हमने रशिया से ऑयल लेना शुरू कर दिया डिस्काउंटेड रेट पे जी। वरना ये डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ जाता। आप इस वक्त जो ऑयल के प्राइसेस चल रहे हैं और जिस प्राइस पे हम रशिया से ले पा रहे हैं उसके बीच में रफली 30-35% का डिफरेंस है जी। तो अगर आप $100 बिलियन का ऑयल लेते हैं तो आप मान लीजिए $30 बिलियन तो ये आपके बच रहे हैं जी। तो ये हमें एक चीज है जिसपे एनर्जी डिपेंडेंसी कैसे मिनिमाइज की जाए फॉरेन सोर्सेज पे, कैसे रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और भी जो रिसोर्सेज जो इंडिया में अवेलेबल हो सकती हैं उस पर डिपेंडेंसी बढ़ानी पड़ेगी। लॉन्ग टर्म प्राइस कॉन्शियस टाइप्स करने पड़ेंगे जो भी एनर्जी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं तो यही वे फॉरवर्ड है। सर एक बड़ा खतरा बना हुआ है, यूएस में आए दिन कुछ ना कुछ हादसे होते हैं, वहाँ मास शूटिंग हुई है आज भी। तो देखो इतनी ज़्यादा ये न्यूज़ अब आ रही है, हम पहले जो शौक होता था वो शौक रह नहीं गया जी। जो हमें एक झटका लगता था कि मास शूटिंग इतने लोग मार दिए गए, अब यूएस से ये न्यूज़ क्वाइट नॉर्मल है। अगर आप डाटा देखें उन्होंने एवरेज हर रोज 2 मास शूटिंग्स या मास किलिंग्स हो रही हैं जी। अब मास शूटिंग वो डिफाइन कैसे करते हैं, जहां पे 4 से ज्यादा लोगों को गोलियां लगें या 4 से ज्यादा लोग मारे जाएं। जी। आप इमेजिन करिए जो 4 से कम वाले उनको तो वो मास शूटिंग में गिन ही नहीं रहे, वो इंसिडेंट्स कितने होंगे जो रिपोर्ट नहीं हो रहे। और आप देखिए वहां की गन लॉबी और वहां की विचारधारा जी। इसके बावजूद कोई भी अगर रूल लाया जाता है कि जिससे गन की डिस्ट्रीब्यूशन पे कंट्रोल हो, गन का इजी एक्सेस लोगों को ना मिले, उसके ऊपर रिपब्लिकन्स और वहां की काफी जनता बहुत ही हाई तौबा मचाती है। तो ये तो मैं आपको मास शूटिंग से एज पर डेफिनेशन के हिसाब से बता रहा हूँ जी। आंकड़ों के हिसाब से हर रोज मल्टीपल इंसिडेंट्स होते हैं जहां पे लोगों की गन्स से किलिंग होती है। मैं पिछले 6 महीने का डाटा बता दूं, रफली 1,10,000 लोग गन वायलेंस से मारे जा चुके हैं। 180 दिन, मैं 200 दिन मान लेता हूं, आप इसको कैलकुलेट कर लो, 1 लाख से डिवाइड करके रफली 500 लोग रोज। और ये वो लोग नहीं है जिन्होंने सुसाइड किया, ये वो लोग हैं जिनको किसी और ने गोली मारी है जी। तो जब आपके, और इतने लोग तो युद्ध में भी नहीं मारे गए अमेरिका के, अगर आप इराक वॉर ले लीजिए, राइट, अफगानिस्तान वॉर ले लीजिए, इतने लोग उनके नहीं मारे गए बिल्कुल जितने डोमेस्टिकली, क्योंकि कुछ कंपनियां अपना बिजनेस करना चाहती हैं जिसके लिए वो अपने लोगों को मरवाने को तैयार बैठे हुए हैं जी। अब इस तरह की माइंडसेट वाली सोसाइटी और दुनिया की सबसे पावरफुल सोसाइटी है। और ज्यादातर नाम आता है सर कि बच्चों का, मतलब 15 से 25 या 30 साल तक के जो यूथ है वही मास किलिंग में शामिल होता है सर। अगर आप देखेंगे ज्यादातर यूथ जो यूएस का अगर मैं बात करूं, बिकॉज ऑफ एन एनवायरमेंट दैट शोज लैक ऑफ होप, स्पेशली यंग मैन, आप देखेंगे इन मोस्ट ऑफ दिस वायलेंट क्राइम्स मैन आर इन्वॉल्व्ड। द रीजन इज जो मॉडर्न कल्चर एक हो रखा है, जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी बेस्ड कल्चर हो रखा है, वो मैन को अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करने देता। उनकी अगर वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं या इफ दे पुश हार्ड, उनको एक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के हिसाब से लेबल किया जाता है। उनको दे आर नॉट अलाउड बीइंग देमसेल्फ। तो इस तरह का एक माहौल बन रहा है जो उनको पुश कर रहा है टुवर्ड्स सच अ मेंटल फटीग और एक होपलेसनेस की तरफ, जिसके कारण ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं। पर उसके भी ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको तो आपको एड्रेस करना ही है, पर हाउ डू यू गिव एन इजी एक्सेस। ये शायद और भी सोसाइटीज में होता हो, बट वहां पे गन्स का इजी एक्सेस नहीं है। तो सबसे बड़ा चैलेंज आपका ये है कि आप गन्स का इजी एक्सेस वहां से खत्म करें। बिल्कुल, अगर आपको गुस्सा है किसी पे तो आपके पास गन ही नहीं है तो आप कैसे शूट करोगे। सर ऐसा ही एक हादसा हुआ और बुर्किना फासो में, जहाँ पे एक जिहाद अटैक हुआ और कई मासूम बच्चे, कई बुजुर्ग और कई औरतें सब मारे गए। इस्लामिक जिहाद हैज बिकम अ बिग चैलेंज पूरी ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए। मेरे को ये लगता है कि आज की डेट में इस्लामिक स्कॉलर्स को दे शुड इंश्योर कि जो लोग इस्लाम को प्रैक्टिस करते हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उनके अंदर बच्चों में ये बताया जाए कि ह्यूमैनिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन रिलीजन। जब तक आप अपने रिलीजन में यही सिखाएंगे कि रिलीजन से ऊपर कुछ नहीं है और एनीवन हु इज नॉट पार्ट ऑफ योर रिलीजन इज सब ह्यूमन। होता क्या है कि जब आप किसी को रिलीजियसली
आप किसी का माइंडसेट ऐसे एक्सट्रीमिस्ट बनाते हैं तो आप उसको उसके माइंड में ये जस्टिफाई कर देते हैं कि जो आपके रिलीजन का नहीं है वो शायद पूरा इंसान नहीं है जी। अगर मैं कॉलोनियल टाइम्स की भी बात करूं तो एक यूरोपियन नॉर्मल आदमी को उसके दिमाग में ये डाल दिया जाता था कि यू आर समहाउ सुपीरियर, जो आपके रंग का नहीं है, राइट, वो समहाउ रेशियली आपके बराबर ही नहीं है और उसको आप इंसान कह ही नहीं सकते जी। इनफैक्ट ड्यूरिंग द स्लेवरी टाइम्स अ ब्लैक मैन वाज कंसिडर्ड एज 3/5 ऑफ अ मैन। तो इसका मतलब आप उसको सब ह्यूमन दिखा रहे हो। इससे क्या होता है कि जो लोग हु पुट क्राइम्स अगेंस्ट दोज पीपल हु आर नॉट फ्रॉम देयर फेथ, उनका माइंड जस्टिफाई करता है कि मैं बिल्कुल सही चीज कर रहा हूं जी। तो जब तक यंगस्टर्स का और कम्युनिटी का इस तरह से ब्रेन वॉश होता रहेगा कि एनीवन जो भी आपके आपके मजहब का नहीं है उसको आप इंसान ही मत समझिए, या वो डिजर्व करता है ये सजा, या उनके ऊपर अत्याचार होना चाहिए, कि जब तक वो आपके धर्म के नहीं है और अगर नहीं है तो इसका मतलब आपके दुश्मन है जी। तो जब तक इस तरह का जिहादी माइंडसेट, और इस वक्त सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि इसमें नुकसान जो लोग मर रहे हैं उनका तो हो ही रहा है, जो लोग इसके टेरर में जी रहे हैं उनका तो हो ही रहा है, पर इस्लामिक कम्युनिटी का भी हो रहा है जी। जो लोग इस टेरर में बिलीव नहीं करते, जो अपनी लाइफ नॉर्मली जी रहे हैं, तो अपने आप ही ऐसे बिहेवियर का इंपैक्ट, हम जितना मर्जी बोल लें भाई कुछ ही लोग गन उठाते हैं, पर ये माइंडसेट कम्युनिटी वाइज एक ज्यादा लोगों में प्रेवलेंट धीरे धीरे हो जाता है। दूसरी कम्युनिटीज उनके ऊपर एक डिस्ट्रस्ट करना शुरू कर देती हैं, तो अल्टीमेटली इसका इंपैक्ट उनकी लाइफ पे भी आता है जी। तो जो टेररिस्ट होते हैं वो सबसे पहले उन्हीं का नुकसान करते हैं जिनके लिए वो गन उठाते हैं जी। तो मेरे को ये लगता है कि अब मुस्लिम कम्युनिटी को दे शुड कम टुगेदर एंड दे शुड नेवर जस्टिफाई टेरर whenever any Muslim person is doing it or Islamic jihadist is doing it। सबसे पहले जब तक मुस्लिम खुद इसको कंडेम करना नहीं शुरू करेंगे, जब तक उसको वो कवर फायर, चाहे वो इंटेलेक्चुअल हो चाहे कोई और हो, जब तक उसको जस्टिफाई करते रहेंगे, जब तक वो ये बोलते रहेंगे कि ये इसके कारण हुआ या ये कुछ ही लोग करते हैं, ये सारी बातें बंद करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो विद इन द कम्युनिटी इसका सबसे बड़ा विरोध होना पड़ेगा जी। मैं चाहे किसी भी देश की बात कर लूं, सबसे पहले विद इन कम्युनिटी जब विरोध होगा, जब वहां के स्कॉलर्स बोलेंगे कि अब बच्चों की इकोनॉमिक वेलबींग, उनकी हेल्थ, अपनी कम्युनिटी के लिए कंट्रीब्यूट करना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिलीजन से, उसी दिन ये कम्युनिटी प्रोग्रेस करना शुरू करेगी और वॉर से और टेररिज्म की जगह पीस प्रिवेल करेगी। मानसिकता बदलने की जरूरत है। बिल्कुल जी, शुक्रिया सर मीनिंगफुल इंसाइट्स के लिए। इसी तरह की इंपॉर्टेंट डिस्कशन के लिए देखते रहिए पंजाब टुडे।